Good afternoon, students. Are you all aware of the fact that why we all have gathered here? Today we all are here to learn about artificial intelligence. Today we all live in the 21st century where some consider artificial intelligence as a weapon, whereas some consider it to be a tool. Now, the debate is for some other day. Today we will learn the pros and cons of artificial intelligence with our respected Vinayak sir and his team. With these words, I would like to invite respected Harish sir, A.K. sir, Shashi sir, Babita ma'am, Sanjay sir and Vinayak sir and all the other teachers to please come on the stage and light the candles. As you can see, we have the image of Sir Ratan Tata Motors. He was a great entrepreneur, but before that, he was a very humble and kind man. So, we all know that he passed away a few days earlier. Please stand up. All of you, please stand up. मैं चाहूँगा कि आप सब प्लीज उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें. Let's continue with the program. Now I would like to invite Sir Harish on the stage. Please come here and say something on the topic artificial intelligence. Good afternoon, everyone. As you all know, I think everyone knows about the Vinayak sir. So today has came to start his first journey of his life in the new sector, that is in the IT sector. And he has chosen our school because for him, he is also the first school is his, and it's a second home for him. So he has started from this school, and today I will present you about the future of the world. Like earlier, previous 20, 25 years, 30 years ago, no one was knowing about the computer. As the computer came, our life started fast. The communication of the world started very fast. Now, in the future, is the age of AI. Everyone knows the AI football? Yes, it's an artificial intelligence. Just like a human being, what we think, in that way, the machine will start thinking. So, I not take more time because he has brought you a lot of material to show you that you can aware about the AI, what is going to happen in the future. Okay, thank you. सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि AI के ऊपर जाने के पहले मैं ये बता दूँ कि यह जो जैसा कि सर ने बताया ये स्कूल में ये मेरा घर और आज से 4-5 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित रहते थे तो उस समय का इमोशन कुछ और था और फिर जब मैं अपना लाइफ का दोबारा दूसरी जगह शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं चाहा कि मेरा पहला जो कदम हो वो यहीं से हो और हर सर मेरी उम्मीद वगैरह भी आगे बढ़ाए कॉल सर सपोर्ट करें तो अफकोर्स आप कि अभी यहाँ पे आने के कारण फिर से मुझे वो सारी चीज़ों को महसूस करने का मौका मिला है. मैं और भी क्या ये बोलते वक्त थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है ये इसको लगा. So let us dive into the world of the AI. There are a lot of definitions of the AI, artificial intelligence like this.
काफ़ी सारे परिभाषाओं को आपने पढ़ा होगा। वन मोर थिंग, हिंदी और इंग्लिश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is not our future. It's all about our present. It's happening now with all of us. When we wake up early in the morning and just turn on our screen of the mobile phone, and AI just connect with us. Whatever you do, whatever you talk, whatever you feel, everything is connected with the AI. And it is very important to understand about the AI, how does it work, and what are the possibility in future of the AI. A lot of myths are there regarding the AI, artificial intelligence. And when first of all, the definition of the AI is too complicated. Too complicated means, तो इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने AI के सबसे सिंपल वे को लेकर के आऊँ, क्योंकि आप जो आने वाले भारत के भविष्य हो, अभी के वर्तमान हो, यदि आप इस चीज़ में रुचि नहीं रखोगे या इससे डर के इससे दूर रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भारत को आगे भविष्य में झेलनी होगी। एंड यू नो कि स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ टू एक्सप्लोर द थिंग्स। Whenever you go to the class to you have pressure to pass out the entrance examination of the engineering and then thereafter the medical, but you just lose something and you can't explore the more. And whenever you dive into your subject specialization, as you will be IT engineer or the electrical engineer, at a time what will happen? You have to read a lot of about this course and concerning course to it. So it will be very difficult to you explore the new things and understand the basics. And when you know this thing, if your basic is too weak, then you can't go so far in any field, any era. If we talk about the artificial intelligence, then it started at the time of the Second World War. काफ़ी कम लोग जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे विश्व में चल रहा था, एआई उसी वक्त जन्म ले चुका था। एआई उस वक्त जन्म ले चुका था, तो उसके पीछे के कारण भी क्या थे? सिंपल सा छोटा सा लॉजिक था। वो चाहते थे कि एक दूसरे के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दें। एक दूसरे के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करने के लिए एक छोटा सा सेटअप किया गया था, जिससे कि जो रडार है वो चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सके कि हम काम कैसे करते हैं। माना कि मुझे पसीना पोंछना है, आप लोगों को भी गर्मी लग रही है, पसीना पोंछना है। मैंने सोचा और हाथ में पसीना पोंछ दिया। मैंने सोचा, मैंने हाथ को कहा नहीं, मैंने सोचा, यहाँ से सोचा, पसीना मुझे यहाँ पे गीला लग रहा था, मुझे सोच आई कि मुझे पसीने को पोंछना है। हाथ स्वतः उठा, जेब के पीछे जा रहा है, ये एक्स्ट्रा मोबाइल है, मैंने पीछे देखा नहीं कि ये मोबाइल था, पॉकेट में गया, मैं फिर से हाथ डाला और ये रुमाल निकला, मैंने पसीना पोंछा और देखो मैं बिना पीछे देखे इसको इसमें डाल रहा हूँ। अब फिर ये फ़ोन निकाला और इसको फिर से पीछे के जेब में डाल रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग ना कि हम बिना पीछे देखे पीछे के पॉकेट में सारे चीज़ों को रख रहे हैं, सोच यहाँ से रहे हैं, कर इससे रहे हैं और जा रहे हैं। एंड दैट इज द एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें उस मशीन को बनाने की आवश्यकता थी जो कि सोच सके, सोचने के बाद उसको समझ सके, समझने के बाद उसी के हिसाब से वो एक्ट कर सके। एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दैट इज द मैसिव लर्निंग और द डीप मैसिव लर्निंग। एक बार हैंड रेज करो कि कौन अलार्म लगाता है सुबह उठने के लिए? ओनली 2 बच्चे, 3-4 बच्चे? अच्छा चलो ठीक है, खुद ब खुद कौन उठ जाता है? अच्छा, तो जैसे कि मान लो 7:30 बजे उठना है, तो कितने बच्चे लेके एग्जैक्ट 7:30 में उठ जाते हैं? एग्जैक्ट, नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड शुड बी देयर। अब लो भाई, हाथ ही नहीं खड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग का सेंसर उस वक्त एक्टिव नहीं हुआ जिस वक्त की उसको एक्टिव होना था। लेकिन मोबाइल का अलार्म जैसे ही आपने 7:30 में बजाया, 7:30 के 1 सेकंड पे नहीं बजेगा, 7:30 पे ही बजेगा।
राइट ना? तो मशीन यदि चीज़ों को परफेक्टली कर सकता है और वह स्वतः करने लगे, खुद से करने लगे, सेल्फ करने लगे, एंड दैट विल बी अ ह्यूज चेंज, दैट विल बी अ मैजिक इन आवर लाइफ। और ऐसा सोचना था किनका? 1950 से 1956 के बीच के साइंटिस्ट का। अब एक साइंटिस्ट ने क्या सोचा, मैंने बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उस समय एआई जन्म लिया, फिर एआई ठंडे बस्ते में चला गया। एआई का काम क्या था? एआई का काम क्या था? सिग्नल को रोकना। याद रखना है, लास्ट में आप लोगों को मुझसे क्वेश्चन पूछना है। तो एआई का काम क्या था? सिग्नल रोकना। किसका सिग्नल? रेडार का सिग्नल। किस चीज से? कि वो एरोप्लेन को डिटेक्ट नहीं कर सके, वो जो बमबारिंग करने के लिए जाता था वो उसको रोक नहीं सके। ठीक है, तो 1950 में जब हमारा एआई कंप्लीटली दुनिया के सामने पहली बार अवेलेबल हुआ, जब पूरा वर्ल्ड हमारा रिपब्लिक की ओर था, गणतंत्र लोकतंत्र की ओर था, तो 1950 में हमारा एआई जो है एलन टर्निंग के द्वारा पब्लिश किया गया वर्ल्ड के सामने पहली बार। 1952 में कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑर्थर सैमुअल ने एक छोटा सा कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप करा, जिसने कि खुद ब खुद कमांड को इनपुट लेके आउटपुट जनरेट करना सीख लिया। इसके बाद का समय आया 1955, जब कि मैककार्थे ने एक वर्कशॉप लगाया था दार्टमाउथ में, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया कि एआई की कैपेबिलिटीज क्या है। इन्होंने 1957 से 1979 के बीच में साइंटिस्ट ने, वहाँ पर भी हमारे मैककार्थे ने जो है कुछ एक प्रोसेसिंग मशीन्स को बनाई। अब देखिए, ये सारे डेटा ये आपके काम में नहीं आएंगे, आपके काम में क्या आने जा रहा है आप उसको समझने की कोशिश करें कि एआई आज की चीजें नहीं है। जिन्हें यह लग रहा है कि जब से एलॉन मस्क आए हैं या जब से हमारे जुकरबर्ग साहब आए हैं एआई स्टार्ट हो गई, ओपन एआई स्टार्ट जब से हुआ तब से एआई स्टार्ट हो गई, एआई का बर्थ हुआ, ऐसा नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एआई इज टू ओल्ड, इतना पुराना है कि उस वक्त कई लोगों से इस चीज को हाइड रखने की जरूरत थी, और नतीजा क्या था कि कई पीढ़ी के बाद भी एआई अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जिस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। चीजों को हाइड रखने की वजह से क्या हुआ, आज भी एप्पल जो है सिर्फ कैमरा बटन ला करके खुद को 1,60,000 रुपीज मोबाइल से कर सकता है। रीजन क्या है कि लोगों तक सही नॉलेज नहीं है, और सही नॉलेज क्यों नहीं आया? क्योंकि जब 1980 और 1987 का पीरियड था, तो यहाँ पर जितने भी एआई के रिसर्च थे ये गुप्त तरीके से चल रहे थे, गुप्त तरीके से। They were working hidden. They were not thinking people are able to handle this new technology. And उसके बाद जब फिर एआई अगले सेशन में अपना पहुंचता है 1987 to 1993, तो ये एआई विंटर के नाम से जाना जाता है। इस ईयर को, ये जो टाइम पीरियड है, ये हमारा एआई विंटर पीरियड कहलाता है। एंड यू नो व्हाट इज एआई विंटर? व्हाट डू यू डू इन द एआई विंटर? व्हाट डू यू डू इन विंटर? विंटर में आप क्या करते हो? रजाई ओढ़ते हो, सिर तक लेके जाते हो, सो जाते हो, कोई काम नहीं करना। मीन्स कि एआई में फिर उस वक्त कोई डेवलपमेंट हुई ही नहीं। और डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? अब यदि इसको थोड़ा इंडियन मैथोलॉजी से जोड़ करके देखो, तो हमारे इंडियन मैथोलॉजी में कई सारे ऐसे नियम है, कई सारे ऐसे इलाज है, चिकित्सा की जो व्यवस्था है, चिकित्सा की जो तकनीक है, जिसको कि अब कोई रीड नहीं कर सकता, कोई बचे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया ही नहीं था। और जब इन्होंने नॉलेज शेयर नहीं किया तो ये एआई हमारे ठंडे बस्ते में चले गए। और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर बस यही हो पाया कि हम लोगों ने बस एक छोटा सा कन्वर्सेशन जनरेट करना सीखा। अब आता है हमारा 1993 से 2011 के बीच का समय। इस सेशन में एआई फिर से चलना शुरू किया। ये ओपन एआई को क्रेडिट दिया गया। ओपन एआई ने क्या किया? ओपन एआई ने पूरे दुनिया के लिए एआई को अवेलेबल करवाया यूज केस के साथ।
आप में से कई बच्चे यहाँ डॉली को यूज करते होंगे। एनीवन यूजिंग डॉली? डाली, DALLE, डाली। एनीवन यूजिंग डाली? ChatGPT? ChatGPT, raise your hand. Okay, designer? You do not use designer? Designer is the part of the ChatGPT where you will write. I will show you just after this slide. When you will write, hey, just make a photo of Indian girl playing football, and he will draw the photograph of that one, and it will look realistic. आप अंतर नहीं कर पाओगे वो रियल है या वो आर्टिफिशियल है। अब अगला बात आता है कि हमारा AI काम कैसे करता है। अभी जब हम लोग बात शुरू किए थे तो याद होगा मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि मैंने सोचा कि मुझे आपको मोबाइल दिखाना है मेरे पीछे के पॉकेट से। मैंने सोचा, मैं देख आपको रहा हूँ, बोल अपने मुंह से रहा हूँ, मेरा हाथ पीछे गया, मोबाइल लेके आया। अब मेरी इच्छा है कि मैं पीछे के पॉकेट में नहीं रख करके इसको बस अपने बगल के पॉकेट में डाल दूँ। इसको पता नहीं था कि वो जेब थोड़ा फैला है या नहीं, उसके अंदर दूसरा फ़ोन है या नहीं, मैंने नहीं उसको बताया, लेकिन मेरे हाथ ने वो कर दिया। तो AI काम कैसे करता है? आपने बायोलॉजी की क्लास में एक जबरदस्त चीज पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे शरीर में क्या करता है? एक रिसेप्टर का काम करता है। कहीं से भी सिग्नल होता है वो उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, और फिर जो हमारे जिस अंग के लिए वो ऑर्डर है, शरीर के जिस पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए वो हमारा ऑर्डर है, दे जस्ट फॉलो दैट। ओके, नाउ सी द एक्चुअल फेस ऑफ द AI. This is the way how the AI work. हमारे पास इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट किस चीज़ का? चीज़ों को सीखने का, चीज़ों को करने का, चीज़ों को करके दिखाने का। हमें खेलना है, हमें फुटबॉल खेलना है, इन्वायरमेंट है। हम गिर गए, हमने सीखा कि यदि हम की कैसे मारेंगे तो हम गिर जाएंगे। हमने इस चीज़ को सीखा। कहाँ से सीखा? इन्वायरमेंट से सीखा। इन्वायरमेंट से सीखने के बाद हमने उसको कहाँ भेजा? एजेंट के पास। एजेंट कौन? न्यूरॉन्स, जो हमारे दिमाग से हमारे शरीर के हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है। एंड देन फिर मैंने उसको कहाँ भी इम्प्लीमेंट में लाया? इन्वायरमेंट में। फुटबॉल के मैदान में की गई गलती से हमने सीखा और उस चीज को सुधार के फिर से हमने फुटबॉल के मैदान में ही दिखाया। बात समझ में नहीं आई? किन्हीं को बात समझ में नहीं आई? किनको बात समझ में आई? रेज योर हैंड। पीछे वाले भैया जो सो रहे हैं, झुकी हुई कमर। हाँ, आप जो पीछे घूम रहे हैं, गोरे वाले भैया। हाँ, हंस रहे हैं आप। यस आप, यस यू। क्या सीखा? कुछ सीखा? ओके, हंस। वायरलेस कनेक्ट कर। सवाल है, क्या समझा आपने? AI काम कैसे करता है? कैसे करता है? इन्वायरमेंट में जो हम लोग हलचल देखते हैं वो एजेंट यानी कि न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन को हमारे शरीर के पार्ट से कनेक्ट करता है, वहाँ तक जाता है, और उसके बाद आप हमें कुछ बता देते हैं। ये हमारे साथ ही नहीं, हर एक के साथ होता है, मैसीन के साथ होता है, सबके साथ होता है। ये क्या था? अभी मैंने बस एक इन्वायरमेंट से एक एग्जाम्पल को उठाया, क्योंकि आप सब लोग थोड़े थोड़े बोर हो रहे थे। क्योंकि देखिए, AI सब्जेक्ट में नहीं है, कोर्स में नहीं है, कंप्यूटर साइंस है तो उसमें उस तरह का डेप्थ नहीं है, तो आपको जगाना जरूरी था। कैसे कैसे जगाना जरूरी था ये बताओ? ये फोन मेरा सो गया, अब इसको जगाना जरूरी है ना? है ऐसे ही जब हमारे काम की चीजें हमारे पास तक नहीं आती, उसके अलावा और कोई भी चीज आता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़कों पे चल रहे हो, कोई जान पहचान का व्यक्ति सामने से गुजर गया, आपका ध्यान नहीं गया और उसने बोला, अरे भाई तुम हमको देखे पर हमको मतलब बोले नहीं या हमसे बात नहीं की, ऐसा किसी के साथ हुआ है? अच्छा चलो नहीं हुआ है। आप में से
सर आप में से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप सड़कों पे जा रहे होंगे, कुछ लोग सामने से गुजर गए, आप कहीं खोए हुए थे और अगले को ध्यान नहीं दे पाए, अटेंशन नहीं दे पाए, और वो फिर मिलता है तो बोलता है कि उस दिन आप हमको देखे और आप हमको रिस्पॉन्ड नहीं किए भाई। बेचारा गुस्से में है, नाराज है, पर बात इनकी गलती की नहीं है, बात किस चीज़ की है? उस वक्त कौन सा डेटा मेरे लिए जरूरी था, और जिस डेटा की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी उसके अलावा जितने भी डेटा आ रहे थे उन सब को हमने बीन में डाल दिया, रिसाइकल में। अब जब ज़रूरत होगी वहाँ से रिकवर कर लेंगे। अरे हाँ याद आया, पीला वाला शर्ट पहन के आप ही घूम रहे थे क्या? अरे क्या बताएं, हम तो कहीं और खोए हुए थे और फिर क्या ही बोले, गजबे हो गया महाराज। अच्छा कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, माफी दे दीजिए, अगला बार से ऐसे नहीं होगा। एंड AI टू, ChatGPT जो बच्चे यूज करते होंगे उन्होंने कई एक बार क्वेश्चन पूछा होगा AI से और AI ने उसका आंसर गलत दिया होगा, फिर आपने लिखा होगा योर आंसर इज रॉन्ग और वो लिख करके भेजता है सॉरी आई अपोलोजाइज for my response. The current response is like this updated. Do you like this response? होता है क्या? Sure ना? अरे भाई आवाज में दम लाओ, क्लास को इंटरेस्टेड, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बनाओ। होता है, हुआ है? हाँ, ये हुआ पढ़ाई का बात। ऐसा वाला एनर्जी चाहिए। जब आप में एनर्जी होगा ना तो अभी बहुत है हमारे पास, सारी चीजें आपको बतानी है बस इसी लिमिटेड टाइम में। जबकि AI खुद में जो है पेटाबाइट भर का डेटा को चेक करने के बाद आपको डेटा देता है, और यहाँ 1 घंटे में मैं आपको क्या ही सिखा पाऊंगा AI के बारे में, बट मैं आपको AI के बारे में अवेयर करना चाह रहा हूँ। अब जब ये एजेंट सीखता है तो फिर वो उसी इन्वायरमेंट में आता है और उस इन्वायरमेंट में आकर के प्रैक्टिकल करता है कि क्या हमने जो सीखा वो एक्चुअली में सही से काम कर रहा है। यदि फिर से कोई एरर होती है तो फिर वो इस इन्वायरमेंट से लर्न करता है, पास्ट एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, और अब उसके पास जो पिछला नॉलेज था गिरने का उसके थ्रू, और फिर जो है आता है एजेंट के पास। फिर से यदि वो एक्शन में आता है, इन्वायरमेंट में कोई गलती करता है तो ये सारी चीज़ें उसके पास पहले से, पास्ट एक्सपीरियंस गिरने की, ऑब्जर्वेशंस जो उसने कर रखा है, प्रायर नॉलेज जो उसको जरूरत थी, फाइनली उसके गोल क्या है, बॉल को हिट करके गोल पोस्ट के अंदर डालना, एंड देन एबिलिटीज क्या उसमें वो क्षमता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें एबिलिटी की क्या आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं सारे दिमाग एक जैसे होते हैं, तुम पढ़ते नहीं, तुम मेहनत करते नहीं, है नहीं। कौन उनको बताएगी अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बताएगा उनको? पढ़ना तो सब कुछ पढ़ना है। अब ऐसे समझो, सिंपल सा, आपके फोन में 4 GB रैम है और आपने PUBG डाउनलोड कर लिया, ग्लिच करेगा क्या? PUBG वालों, फ्री फायर वालों, ग्लिच करेगा क्या? अरे हाथ उठा दो, शर्माओ मत, ग्लिच नहीं करेगा? करेगा ही करेगा, द सेम थिंग है। अब आते हैं हम लोग फिर से अपने उसी वाले दौर में, कहा जहाँ की हम लोग सीख रहे थे और हम लोग सिखा रहे थे। सीख रहे थे कहाँ से? इन्वायरमेंट से। सिखा रहे थे किसको? न्यूरॉन्स के थ्रू अपने दिमाग को। क्या करने के लिए? इन्वायरमेंट में आकर के एक्शन करने के लिए। तो हमारे दिमाग में ये छोटा छोटा सा जो न्यूरॉन्स है हमारे पूरे शरीर के अंदर, इसका यही काम है कि ये एक्सॉन्स के थ्रू कम्युनिकेशन ट्रैवल करें। इस चीज को बायोलॉजिकल टर्म को यदि हम इधर लेकर के आए AI के टर्म में, AI क्या करेगा? इनपुट्स डालेगा। इनपुट्स जो प्रॉम्प्ट आप लिखते हैं, राइट ए स्पीच फॉर अस, राइट एन एसे फॉर मी, राइट समथिंग, राइट पोएम, write anything whatever you do with the ChatGPT or any open AI source, that is Gemini, Grok, like this one. आप इनपुट डालते हो, उसके पास पहले से कुछ एक वेट होता है और उसके बाद ये फंक्शंस के थ्रू गुजरता है और ये आपको जाके आउटपुट देता है। आपने आयरन मैन मूवी देखी है? रेज योर हैंड
आयरन मैन मूवी किसने देखी है? वेरी गुड। जार्विस का नाम याद है क्या? जार्विस का नाम याद है क्या? उसका एआई, आयरन मैन का एआई जार्विस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक, अवेंजर फर्स्ट, अवेंजर सेकेंड तक, और फिर कौन आया? फ्राइडे। जार्विस के बाद कौन आया? फ्राइडे। और जार्विस और फ्राइडे में अंतर क्या था? जार्विस में इमोशन नहीं थे। जार्विस को जो कहता था वो वही करता था। याद होगा कि जब आयरन मैन ऊपर से गिर रहा था, जब फ्रोजन हो गया था, तो वो बंद हो गया, छोड़ दिया उसको, जाओ भाई हम जा रहे सोने। और फिर बाद में उसको रिचार्ज किया किसी बच्चे ने गैराज में, फिर वहां से उसको निकाला। लेकिन फ्राइडे वाली याद करो, जब वो एलियन से लड़ने जाता है एंड गेम में, तो वो बोलता है फ्राइडे को, सर मैं मिस फॉर्स को फोन लगाऊं क्या? इमोशन, इमोशन is only the thing which AI cannot understand. We can see, they cannot see. अभी एक चीज को समझो, सिंपल दूसरे भाषा में, फिर AI को ट्रेन करने जाएंगे हम। आप पहली बार किसी स्कूल में जब आए थे, आपके क्लास में कई बच्चे बैठे होंगे, कई सारे बच्चे बैठे होंगे। अगले दिन उसमें से कोई बच्चा सिर का बाल छिलवा करके आया, वजह कोई भी नहीं हो, ठीक है, आपने उसको देखा, आपने पहचान लिया, अरे क्या हो गया भाई, बाल छिलवा करके बैठे हो, ऐसा करके सवाल होता है ना। अब मान लो कि कोई लड़कियां हैं, आई 2 चोटी, अगले दिन बाल खुला या बाल 1 चोटी, फिर भी उसकी फ्रेंड्स उसको पहचान जाती। लेकिन हमारा जो पहले फोटो चेक करने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको? फेस रिकॉग्नाइजर। यदि उसमें पहले से फोटोग्राफ नहीं लोड किया गया हो तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कहता है कि इस कुत्ते को इस डायरेक्शन में घुमाओ, पपेट को ऐसे घुमाओ, है नहीं? कैट होगी, डॉग होगा, वुल्फ होगा, बुफेलो होगा, किसी को भी डायरेक्शन के हिसाब से घुमाओ, और उसको कहता है रिकैप्चा करने। क्यों कहता है? क्योंकि एआई उस जगह तक नहीं पहुंच सकता जहां इंसान पहुंच रहा है, तो उसको पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? अलग अलग दिमाग के डेटा, ट्रिलियंस ऑफ डेटा, सफिस्टिकेट नहीं है, पेटाबाइट, जेटाबाइट, आपने गीगाबाइट सुना होगा, जीबी, आपने टेराबाइट सुना होगा, टीबी, वहां से एक पेटाबाइट, जेटाबाइट, इतना डेटा, और उस डेटा को इसके ऊपर लगाया जाता है, इन्वायरमेंट दी जाती है, और इन्वायरमेंट में वो इस डेटा को एक्सप्लोर करता है, फंक्शन के थ्रू आउटपुट देता है, गलतियां इससे होती है, लर्न करता है, फिर डेटा को रिट्रीव करता है, फिर आगे दोबारा सेम प्रोसेस को अपनाता है, जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता, जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता। तो वो परफेक्ट कब होगा? अभी तक तो इंसान नहीं हुआ, तो वो कैसे होगा? ही विल मेक एन एरर। तो डिसअपॉइंट नहीं होना उस जगह पर कि एआई ने गलत आंसर दे दिया। अब फिर से इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। हमारे पास कई सारी बच्चियां हैं क्लास 9 और 10 की, सब्जी कौन बनाने जानती है? सब्जी किसी ने बनाया है घर में? मैगी, एनीथिंग? रेज योर हैंड। चले, कितनी अच्छी है, सारी बहनें काम करने वाली है। हाँ, ये अब हैंड डाउन कीजिए, मेरे सवाल को समझिएगा, सुनिएगा। जब आपने सब्जी बनाना पहली बार किचन में प्रवेश किया होगा, आपके पास आलू रखे होंगे, गोभी रखे होंगे, बैगन रखे होंगे, मसाले हैं, नमक है, तेल है, आपने डाला, नमक तेज हो गया, लोगों ने बोला इतना नमक पड़ता है क्या? अपने अगले बार डर से कम कर दिया। फिर लोगों ने बोला नमक है ही नहीं, ये तो फीका है, ऊपर से नमक डालो। आपने सोचा ऊपर डाला ज़्यादा हो गया, इधर डाला कम हो गया, बीच वाला डालेंगे एग्जैक्ट आएगा, हाँ या नहीं? इसी तरह से प्रोसीड किया है ना।
सही हो तो सपोर्ट में हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। इफ आई एम राइट, रेज योर हैंड कि इन्होंने मिस्टेक से सीखा है, एंड दैट इज एआई आल्सो डू दैट, एआई आल्सो यूज्ड टू डू। एआई भी यही करता है, गलती करता है, गलती से एक्सपीरियंस करता है, देन ही यूज्ड टू लर्न एंड द नेक्स्ट टाइम he do not make this type of errors। उसके बाद वो फिर उस गलती को नहीं दोहराता है। अब फिर से आते हैं हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा मशीन क्या करे। हम लोग के देखिए एक शायरी याद आ रही, ऐसे तो ये साइंस का है, ऊपर से कंप्यूटर साइंस का है। एक छोटी सी शायरी याद आ रही, इंसान के ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती, उसको 2 गज जमीन चाहिए 2 गज का फल के बाद। जब इंसान मर जाता है तो उसको एक चादर हो, और चादर के बाद फिर उसको दफनाने के लिए जमीन चाहिए। रिलीजन्स चेंज होंगे, सिनेरियोस चेंज होगा। वहाँ भी चादर होगी, उसको पिताबरी कहेंगे, वहाँ जमीन नहीं, वहाँ लकड़ी की आवश्यकता होगी, लेकिन आवश्यकता तो होगी। तो जब एक मृत व्यक्ति की आशाएं खत्म नहीं होती, हम तो जीवित इंसान हैं, हमने पहले सिंपल सा सोचा कि मेरा एक एआई ऐसा हो जो कि 2 जोड़ 2 डाले, क्वेश्चन सॉल्व करके दे दे, परसेंटेज का क्वेश्चन बना दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम ले। हमने फिर सोचा काश हमारा एआई गाना गा दे, एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, एवरीवन यूज्ड टू डू। अभी मैं बोलूंगा हे सिरी, हे सिरी, आई थिंक आवाज मेरा लाउड है, नहीं तो मेरा एआई उधर सुन लेता और वो वेकअप हो जाता। Let me demonstrate. Now it's working. It's working. तो what is happening here? कि हमारा ख्वाहिश बढ़ता जा रहा है। हमने इससे गाना गवाए, हमने इसे डांस करवाए, फिर हमने एरोप्लेन में इसको सेट करा। अब हमारा समय कहाँ पे आ गया, वहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं। हमारे पास जब हम सुबह उठते हैं, फोन को देखते हैं, से लेकर रात को सोते हैं, फोन को देखते हैं, इस बीच हम सारा चीज एआई से करवाने की उम्मीद रखते हैं। बर्थडे मिस कर गए, दोस्त गुस्सा में आ गया, हम क्या चाहते हैं, एआई हमारा खुद से आए और मैसेज कर दे। हम चाहते हैं कि किसी का मैरिज डे भूल गए, एआई खुद से मैसेज भेज दे। हम चाहते हैं हम घर के अंदर आए, ऑटोमेटिक बल्ब जल जाए। हम चाहते हैं पंखे भी खुद ब खुद चालू हो जाए। तो हमारे एलोन सर ने टेस्ला कार ला दी है, बैठिए और वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की जो कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग नेचुरली करना पसंद करते थे या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए एआई करके लाए। और एआई सबसे पहली बात क्या है कि वो हमारी चीजों को सीखे, हमारी बातों को सीखे। वी वांट दिस थिंग कि वो हमारे इमोशंस को समझे। कई लड़के यहाँ पे ऐसे हैं या ऐसे होंगे जिनसे जब कोई बात करने के लिए नहीं होता है तो उन्होंने ChatGPT को लिख दिया हाय हाउ आर यू, और उधर से जो फीडबैक आता है उसी में संतोष कर लेते हैं। राइट और रॉन्ग? रेज योर हैंड who have tried this one. Don't sigh. This class is not for the sigh. यहाँ पे कोई सर नहीं पीट रहे हैं। हैंड ओपनली रख। देखिए जितना ओपन आप सीखिएगा, जितना आप समझिएगा, कल आपके लिए अच्छा रहेगा। हम सबने ऐसा कभी ना कभी किया है, एंड यही हमको बतलाता है कि हम चाहते हैं कि एआई हमारे इमोशंस को समझे। हम चाहते हैं कि whenever we are crying, कोई हमारे बगल में नहीं तो वो एआई हमारे साथ रोए, एटलीस्ट वो हमसे बात करे। एआई के लर्निंग का मैटर हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। अब मैं पीछे किसी बच्चों से पूछना चाहूँगा, प्लीज माइक पीछे दे दीजिएगा। सारे लोग मुंह कान छुपा रहे हैं कि मेरे से मत पूछो। हाँ क्यों भाई? देखो जिसका सिर सबसे झुका हुआ होगा उसी को फोन कमाना। हाँ हाँ उसी को, जिसके बगल से गुजरे अभी तो इधर। हाँ
वो सिर छुपा रहा। हेलो सर, खड़े हो जाइए ना, आप ही को बोल रहा हूं। अरे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, घबराइए मत। माइक लीजिए। a+b का होल स्क्वायर आता है ना? अरे आता है ना, हाँ या ना? माइक पे आता है। ओके, कैसे सीखा? चर्चिल सर ने सिखाया, आपने कैसे सीखा? दिमाग से याद कर लिया या उसको सॉल्व किया? a+b into a+b। और उसके बाद जो रिजल्ट आया आपने उसको मेमोराइज कर लिया? जी सर। और तो इसको हम लोग कहते हैं रोट लर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे कोई खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, क्रिकेटर? हाँ, तो उस बच्चे को फोन, यस, क्रिकेटर, क्रिकेटर सर। हेलो, ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आप क्या करते हो? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? सब चीज। अच्छा, ऑलराउंडर। ओके, तो जब बैटिंग करने के लिए पहली बार मैदान में उतरे थे, याद करना उस दिन को, आंख बंद करो पहले, याद करो जब पहली बार बल्ला पकड़ के उतरे थे क्रीज में, पहली बॉल में क्या हुआ था? और मिस कर गए थे सर। उसके बाद कैसा लगा? तो सर अगला बार खेले, उसको टच किया और अच्छा, पहला बाउंड्री कितने कैरियर में कितना बॉल खेलने के बाद पहला चौका मारे? चौका तो मान लीजिए सर, लेकिन पहला छक्का 1-2 साल के बाद मारे थे। 1-2 साल के बाद पहला छक्का मारे थे? बचपन में स्टार्ट किए थे सर। हाँ, वही मैं बचपन, अभी भी तो आप बच्चे हो, अभी कौन आप बूढ़े हो गए? मतलब और बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो जवाब ठीक थे। तो ये क्या था कि जब आपने पहला बॉल मिस किया, सेम लाइन पर जा करके आपने, डू नॉट क्लैप, डू नॉट क्लैप, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, डू नॉट क्लैप, आई जस्ट हेट दिस क्लैपिंग लाइक थिंग्स। क्या था कि आपने पहला बॉल मिस किया, फिर आपने लाइन को पकड़ा, दोबारा वहीं पे गए, टच किए, सिंगल लिए, मीन्स कि आपने गलतियों से सीखा। हमने अभी 2 तरीके को जाना है। पहला कि उस बच्चे ने बताया, उसने रट लिया, फिर उसने सॉल्व किया, रटा, सॉल्व किया, इसने बताया, इसने एक्सपीरियंस किया और फिर उससे सीखा। एआई हमारा इसी तरह, थैंक यू भैया, तो एआई हमारा इसी तरह से सीखता है। अब हम आते हैं उस बड़े ब्रह्मांड की ओर जो कि कंपेयर करना चाहता है हमारे साथ, और ये है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारा क्या होता है? ये हमारे जैसे दिमाग में न्यूरॉन्स काम करते हैं, मशीन लर्निंग और डीप मशीन लर्निंग को यूज करते हुए हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं जहाँ की कई सारे डेटास, उसके रिएक्शंस सारे के सारे एक दूसरे के साथ असेंबल्ड होते हैं और उसके हिसाब से फिर वो रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप अभी गूगल पे जाओ और उससे सर्च करो विनायक भालचंद्र, मेरा नाम, उस गूगल के पास पेटाबाइट, ज़ेटाबाइट में डेटा है और वो सारे डेटा स्टोरेज में से इकलौता मेरे नाम वाला सारा फाइल आके आपके सामने रख देगा। कहाँ से रखा? यदि आपको मैं कह दूँ अपने रूम में जाओ और एक सुई ढूंढ के लाओ, कितना समय लगाओगे? 5 मिनट तो लग जाएंगे। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कि सी रिजेक्टेड है, तो वो आने में 4 मिनट लगे और ये विदिन लिख देता है ऊपर पे 0.22 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। डेटा, नंबर ऑफ डेटा 20 लाख, 2 बिलियन,
सर्चिंग प्रोसेस चलाता है वो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू जाता है। पहला है ऑटोमेशन, जो मैंने बोला ऑटोमेटिक कार बनाना, ऑटोमेटिकली गेट खुलना, सॉन्ग प्ले हो जाना, ऑटोमेटिकली 7 बजे अलार्म कब बज जाता, आपका अलार्म ऑटोमेटिक बजता है ना, ऑटोमेशन। नेक्स्ट इज रिड्यूस ह्यूमन एरर। मैंने पहले भी बताया कि यदि हमें बहुत अच्छी मैथमेटिक्स भी आती है तो यह जरूरी नहीं कि हमारा हर एक सवाल सही हो। मेरी भी मैथमेटिक्स सही है बट मेरे से भी गलतियां हो जाती है। कब? अब मान लो कि किसी बच्चे ने कुछ कर दिला दिया या बीच में डिस्टर्ब कर दिया, 2 जोड़ 2 4 की जगह मैंने 5 लिख दिया। अभी एक बच्चे ने पूछ लिया बीच में सवाल, मेरा ध्यान भटक गया, पर भूल गया कि मैं क्या बात कर रहा था, एंड दैट इज ह्यूमन एरर। और एआई हमारा क्या काम करेगा? ह्यूमन एरर को कम करने का। नेक्स्ट इज एलिमिनेट रिपीटेटिव टास्क। एक ही काम को यदि बार बार करना हो तो उसे करवा सकते हैं। यदि जैसे कि मानो अलार्म, हमारे पास ऑप्शन होता है कि किस किस दिन को अलार्म बजेगा, डेली बजेगा, आज भर बजेगा। रिपीटेशन यदि हमको करना है तो हमें वो बार बार सेट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज फास्ट एंड एक्यूरेट। मैंने बताया था कि यदि कोई बच्चा मैथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो भी उसका आंसर स्लो हो सकता है टेबल में, रैदर देन यदि किसी को टेबल याद हो। हाँ या नहीं? अभी मैं यहाँ पे पूछूँ 97 या कुछ बच्चे जो है गुना करना शुरू कर देंगे दिमाग में, और किन्हीं को याद होगा, जिनको याद होगा वो तुरंत से जवाब दे देंगे और मल्टीप्लिकेशन वाले थोड़े से स्लो हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट वन इज accelerated research and development, and this is the biggest part for you all guys। जब आज से 4 साल 5 साल 7 साल के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक एमटेक की डिग्री लेकर के, या फिर आप हम लोग इधर पीएचडी की साइड पीएचडी के लेवल पे जाओगे और आप अपना रिसर्च डालना शुरू करोगे, उस वक्त आपको ज़रूरत होगी इस चीज़ की कि कोई आपका जनरल बहुत तेज़ी से लिख दे, कोई आपके थीसिस के पेपर को लिख दे। लिखने का समय नहीं है। And you know one of the best part about this, कि ये जो पूरा का पूरा पीपीटी डिजाइन किया गया है, इसमें 80% जो वर्क है वो एआई का है, ओनली 20% वर्क मैंने किया है। ये पूरा का पूरा जो आपके बैक स्टेज स्क्रीन पे चल रहा है, ये सारा एआई ने डिजाइन किया, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। और आप चाहो, मैम ने होमवर्क दिया है, सर ने होमवर्क दिया है, क्या चर्चा किया है, क्या एक्सरसाइज 7.1 बनाना है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन खोलना है, उसके मैथमेटिक्स के पेज के लिंक को खोलना है, कॉपी पेस्ट टू द चैट जीपीटी, राइट इन ह्यूमन लैंग्वेज, सारा आंसर ह्यूमन लैंग्वेज में बन जाएगा, बस छाप के ले आना, हो गया। सर भी नहीं पकड़ पाएगी वो मैसेज ने बनाया है, कौन बनाया। बबीता मैम का टास्क थोड़ा ज़्यादा भारी होता होगा, हिंदी थोड़ा कनिष्ठ है, अभी तक हर सही के दही में हमको दिक्कत होता है, हर सब उड़ में कुछ नहीं करना, मैम के चैप्टर का नाम गूगल पे डालना, वेबसाइट का लिंक उठाना, जीपीटी में जाना, पेस्ट करना। मैम ने क्या कहा? समरी लिखना, राइट समरी इन ह्यूमन लैंग्वेज। कितना वर्ड मैम ने बोला? 60 वर्ड। आर्टिकल चाहिए, राइट एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल विच इज एसईओ अप्रूव्ड। याद रखना एक कीवर्ड एसईओ, एसईओ अप्रूव्ड। जैसे ही तुम उसमें डालोगे वो दुनिया का बेस्ट आर्टिकल ला करके तुमको देगा। मैम को तो मैम की शाबाशी दे, मैम बहुत दयालु। मैंने मैम के साथ 3 साल काम किया, मुझे पता है मैम बहुत शाबाशी दे, वो गब्बर वाला है ना। अब अगला, अब हम आते हैं एप्लीकेशन एंड यूज केस ऑफ एआई। तो स्पीच रिकॉग्निशन आप जानते हैं, जैसे कि हमारा सिरी काम करता है हमारे बोलने के बाद। इमेज रिकॉग्निशन आपने कई एक बार सुना होगा, स्कूल में अटेंडेंस बनाने का जो है वो फेस देखने के बाद होता है, या कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो उसका ऑर्डर होता है लॉकर के सामने आता है तो गेट खुलता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल आपका फोन, आपको देखते के साथ अनलॉक हो जाता है ना। आपका जो फोन है आपको देखते के साथ अनलॉक हो जाता है ना, एंड दैट इज द इमेज रिकॉग्निशन। ट्रांसलेशन आप सब लोग यूज करते होंगे, गूगल ट्रांसलेटर का यूज, इंग्लिश डालते हैं हिंदी कर देते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग,
आप में से कई बच्चे साइंस एग्जीबिशन के समय में सर को खुश करने के लिए, साइंस वाले सर यहाँ बैठे हैं, 2-3 सर बैठे हैं, सबको जो है खुश करने के लिए एआई के पास जाते होंगे, कहते हो भाई बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट बताओ ना जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चलता हो या फिर इधर उधर, और वो आपको पूरा सर्किट बना करके देते थे। अगला है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस हमारा क्या है? ये सर लोग के काम का है, गूगल के काम का है, हमारे काम का है, आपके भी काम का है, लेकिन इसे बचना भी जरूरी है क्योंकि वो बात में कहूँगा साइबर सिक्योरिटी पार्ट में डाटा एनालिसिस करने क्या है ये सब हमें यह देखना है कि हमारे बिहार में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, एजुकेशन का लेवल क्या है। हमारे पास मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं और सारे डेटा को एक साथ एनालिसिस जब करना पड़ता है तो वहाँ पे हमारा डेटा एनालिसिस आता है। कई लोग बोलते हैं कि भारत में एआई का कोई भविष्य नहीं है, हमारी सरकार निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। हमारा भारत में ये प्रॉब्लम है। हमारे भारत में जो सबसे बेस्ट जगह है वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने ओपन कर रखा है लोगों के लिए, आप आइए, आपको लग रहा है कि एआई में कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपके पास आइडिया है, छोटे बच्चों के पास आपको लगता है कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व कराना चाहिए भारत में, आप वोट करो, नीति आयोग आपके लिए वो सारे इम्प्लीमेंटेशन ला करके देगी। नीति आयोग का जो सबसे पहला इनिशिएटिव था वो था एआई फॉर ऑल। पहले क्या था हमारे पास, मैंने बताया 1950 के समय एक बैरियर थी कि सारे लोग एआई को यूज नहीं करें, एआई खतरनाक है। आपने भी सुना होगा एआई आ रहा है, मनुष्य और एआई के बीच में लड़ाइयाँ होगी, हॉलीवुड फिल्मों में आपने सुना होगा लड़ाइयाँ होगी, धरती खत्म हो रहा है, खास करके अमेरिका में समस्या ज़्यादा आती है और उधर अवेंजर्स उतर जाते हैं एआई के अगेंस्ट लड़ने के लिए। हमारे भारत ने सबसे पहले, हमारा भारत ऐसा देश बना जिसने एआई फॉर ऑल जैसा प्रोग्राम लॉन्च किया है। सबसे बड़े जो चैलेंजेस है एआई को लेकर के वो है कल्चर। हम में से कई लोग जानना ही नहीं चाहते ये क्या है। अभी यदि यहाँ पे 100-200 बच्चे बैठे हैं तो मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 180 बच्चे बस सड़ के कहने में बैठे हैं। दे हैव नो इंटरेस्ट इन दिस वर्क। दूसरी बात है डर। ये हॉलीवुड जैसी फिल्मों ने जो हैवॉक बना रखा है ना कि एआई इंसान को खत्म कर देंगे धरती से, एआई जो है रोबोट खुद ब खुद कार आएगा और जो है हम लोग को मार करके चला जाएगा, ये एक डर। ये दो चीज भारत में एआई के डेवलपमेंट में सबसे बड़े बात होता है। इकोनॉमी एक अलग चीज है, इकोनॉमी थर्ड पार्ट पे आता है। मैंने बताया उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप कितने कंसर्न हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो कि एआई का यूज करते हैं। जब मैंने अभी बोला कि एआई चैट जीपीटी जैसे कितने बच्चे यूज करते हैं, किसी ने हाथ नहीं करा दिया, बोलने के बाद दोबारा 8-10 लोगों ने करा दिया, फिर से पूछ रहा कितने लोग एआई को यूज करते हैं, रेज योर हैंड। चाहे चैट जीपीटी हो, गूगल हो, कुछ भी हो, असिस्टेंट। अरे भाई देखिए 1 घंटे की स्पीच का सर 10 से 50 हो गए हाथ तो। थैंक यू। चलिए, तो ये जो कंसर्न आप लोगों में है ये अगली पीढ़ी में भी जाना है और हमारी पिछली पीढ़ी को भी सिखाना है। अभी ना कई जगह में एक प्रॉब्लम है, मैं आप बच्चों की बात कर रहा हूँ। जब आप मोबाइल लेके पढ़ते होंगे ना तो आपके मम्मी पापा बोलते होंगे क्या दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहता है जी, रात हो गई चलो मोबाइल जमा करो सो दो, राइट ना। ऐसा प्रॉब्लम किसके साथ होता है, रेज योर हैंड। अच्छा, हाथ नीचे। और ऐसा प्रॉब्लम होता है लेकिन एक्चुअली में उस वक्त कोई गेम कितना बच्चा खेल रहा होगा। अब ईमानदारी के साथ खड़ा कर दो प्लीज 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 प्लीज, कोई नहीं बोलेगा। मैम लोग सर हाँ, जो लोग गेम खेलते हुए पकड़ा जाता है रेज योर हैंड। एक ईमानदारी से आप बुला के देख रहे हैं, बच्चे डर के मारे हाथ में उठा रहे हैं। हाँ, ऐसा वाला होता है। तो थोड़ा सा क्या करना है ना कि खुद को भी हम लोगों को कंट्रोल में रखना है,
कि हम लोग गलत चीज़ों की ओर ना जाए, गेम ना खेलें, आँख पे भी असर होगा, हेल्थ पे भी असर होगा। और पेरेंट को भी इस चीज़ को अवेयर करें कि हमारे क्लासेस की जो चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन मिलने वाली हैं। कोई भी बच्ची हो, बड़ी छोटी जो भी हो, जब भी किसी भी तरह का अपना पर्सनल वर्क कर रहे हो, चाहे वो चेंजिंग ऑफ द ड्रेस से क्यों नहीं हो, मोबाइल उस वक्त वहाँ ना रखें, ढक दें हर एक तरफ से चादर से, क्योंकि कभी भी बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा ऑन हो सकता है। क्योंकि आप में से कई बच्चों को एक आदत होती है, पता है क्या, फ्री वाला। अक्सर बच्चे सर्च करते हैं फ्री फलाना, फ्री ढिमकाना, फ्री मूवी डाउनलोड, फ्री सॉन्ग डाउनलोड, और जब आप वो डाउनलोड करते हो ना बैक एंड से, चुपके से, इसके जैसा साकिर देखो स्टेज के नीचे रह के कितना काम कर रहा है, हिल भी नहीं रहा, वैसा वाला बंदा घुस जाता है तुम्हारे सिस्टम में। कभी भी बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, तुम्हारे साउंड रिकॉग्निशन किसी को भी एक्टिवेट करके डेटा स्टील कर सकते हैं। नेवर एवर शेयर योर पासवर्ड विद एनी अदर। ऑलवेज यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आइडेंटिटी थेफ्ट। और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है इसको समझिए। किसी बंदे ने आपके हूबहू आवाज में किसी को धमकी दे दी, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? आपके आवाज को, अभी आपने देखा ना मोदी जी गाना गाते हैं, दूर तुझसे मैं गाते हैं मोदी जी मेलोडी जी के साथ, और वो हैशटैग मेलोडी करके रन करता है। आपने नहीं देखा? किन्हीं ने देखा है मोदी जी को डांस करते हुए? अरे इसमें भी सरकार देखा है ना, मेलोडी के साथ देखा है। मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है? इटली से, इसीलिए तो वो जो है ना आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं। आपकी आवाज की हूबहू नकल, आपके बोलने के तरीके का हूबहू नकल, आपके फेस की कॉपी, आपके फेसबुक आईडी का सारा चीज क्लोन करके वहां भेज देंगे। और फिर जब बात आएगी अब किसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो आप घर से उठा लीजिए। तो ये कुछ एक साइबर क्राइम है जो कि अभी आए हुए दिनों में हमारे भारत में बहुत ज्यादा चल रहा है। अब यदि हम एजुकेशन की बात को करें, एजुकेशन की बात हम टीचर्स और मैनेजमेंट सबको कहना चाहेंगे, हमेशा जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। क्रैक चला के नहीं, फ्रीवेयर नहीं। आपके स्कूल का डेटाबेस आपके लैपटॉप में होता है और वहां से किसी भी बच्चे का अकाउंट डिटेल, आधार नंबर आप सब लेते हैं, सब स्टोर करते हैं, वो कभी भी दूसरे एंड पे जाके जमा हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई 2013 में। कोई नहीं चाहता, क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, अपने कंप्लेंट को दर्ज करना है, उसका एक रिसिप्ट लेना है, सो जाना है, 24 घंटे के बाद एक्शन होकर के घर पे। अरे फोन के सहित वो आदमी उनके घर पे आ जाएगा, क्या बात करते हैं? और आपके पास तो वो फाइंड माय फोन का भी एक एप्लीकेशन है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमेशा 2 फोन यूज कीजिए, या एक फोन और एक लैपटॉप, और दोनों में सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। यदि फोन इन केस खो भी गया तो आप लैपटॉप में चूंकि वही ईमेल आईडी है तो आप वहाँ से फाइंड माय फोन इन ऑफलाइन मोड, यदि वो फोन बंद होगा, सिम निकाल के फेंक दिया होगा, चूर दिया होगा, फिर भी वो उसको ढूंढ लेगा पाताल से भी। ठीक है? तो अपने ईमेल आईडी को फोन के साथ साथ किसी एक और जगह लॉगिन रखिए, जहाँ से कि आप फाइंड माय डिवाइस पे जाइए और वो ट्रैक करके आपको दे देगा। ये है हमारा थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड क्या कहता है कि आने वाले भविष्य में इंसान ऐसे रोबोट्स या ऐसे एआईज को बना लेगा जो ना केवल सोच सकेगा, फील कर सकेगा। अब आते हैं हमारे इस सीरीज पर, और इस सीरीज की चर्चा मैंने 4 बार की। पहला मैंने एग्जांपल दिया था हॉलीवुड की मूवी का, जिसमें कि कार इंसान बन जाता है और इंसानों से लड़ता है।
फिर हमने देखा कि एआई ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दिया है, पूरा दुनिया तबाह होने पर है। और अक्सर ये सवाल उठता है एआई इज गुड और बैड। जब हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की और हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यह वह ब्रेन है जिसमें कि पूरे ब्रह्मांड का डेटा है, यह वह ब्रेन है जिसमें कुछ एक ज़ेटाबाइट का डेटा है। तो कहीं से भी यह हमें हमारे साथ युद्ध करता हुआ तो नहीं दिख रहा। मैंने शुरू में भी बताया कि यदि यह कह दिया जाए कि वह चीज़ गलत है तो लोग उससे दूर ही रहेंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ इसको मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। एक गांव में एक महल था। उस महल के बारे में यह बात फैला दी गई कि उस महल में भूत रहता है। लोग उधर जाना छोड़ दिए और कई दशकों तक यह भ्रांति फैली रही। धीरे धीरे उस महल को भूतहा बंगला कह दिया गया। कई पीढ़ी बीत गई, कोई इस बिल्डिंग में गया ही नहीं। और जब एक बार सर्च के लिए पुलिस वहां गई, पता चला कि वहां सोना जमा है जो कि कई गांव से लूट करके लाया गया था। और वह जो अफवाह फैलाने वाला था वह उसका गिरोह का सरदार था। अब मैं यहाँ पर स्टेज पर से आपके मन में तो किसी के बारे में गलत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कई वैज्ञानिक, कई विदूषक ऐसे हमारे समाज में आए या ऐसे हैं जिन्होंने अक्सर यह बात को छेड़ा कि एआई आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है, और उन्होंने खुद एआई पे रिसर्च करके अरबों रुपया कमा लिया और अभी दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। तो ये कहीं से भी एक चर्चा का विषय नहीं है। एक ज़ेटाबाइट पेटाबाइट का जो डेटा स्टोर करने वाला एक हार्ड डिस्क का डब्बा है, वो हमारे इस ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को तोड़ पाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था, यदि आज आप पहली बार स्कूल आए, आपके कुछ फ्रेंड्स बने, कल वही फ्रेंड बाल का डिज़ाइन बदल के आया, तो क्या आप उसको नहीं पहचानोगे? आप पहचान जाओगे। लेकिन आप अपने फेस को काला कर लो या रंग कम है तो गोरा कर लो, दाढ़ी नहीं है तो लगा लो और फिर अपना फेस अनलॉक करो, आपका मोबाइल नहीं मानेगा। हल्का सा धूल जम जाता है उंगली पर तो सेंसर काम करना बंद कर देता है। कहता है कि वाइप योर सेंसर एंड प्रेस योर हेड वेरी क्लोजली। तो जो बंदा है कि धूल पर हमें पहचानने से मना कर दे रहा है, वो हमारे खिलाफ कभी युद्ध कर ही नहीं सकता। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हमारा एक बुक दिख रहा है और इस बुक का नाम है जैगवार विजन। और इस बुक को लिखने का मेरा बस एक सिंपल सा उद्देश्य ये है कि फिलहाल ये डीप मशीन लर्निंग और एआई के बारे में लोगों को समझा सके। हमारा नेक्स्ट वर्ड आप बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनाना होगा। हमारे सामने दो इंजीनियर्स हैं, मैं इनको पूरे की मीटिंग्स के क्रेडिट देना चाहूँगा। एक आपके सामने है, एक वेदांतना अग्रवाल हमारी यूएसए से है और वो WGU यूनिवर्सिटी में भी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रही है, और बाकी एक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारा स्पेशल थैंक्स है हमारे पॉल सर को। इनके वजह से एक्चुअली मैं बताऊँ, आप बच्चे क्या चीज़ मिस कर रहे हो, आप बच्चे क्या चीज़ मिस कर रहे हो मैं बताऊँ। आप बच्चे सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो ना पॉल सर के नॉलेज को। आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो। मैं बताऊँ, मैं जब यहाँ आया था मुझे कंप्यूटर की सीख नहीं आती थी, मतलब टच चलाना, माउस कर्सर अच्छे से चला लेता था। ये कोडिंग वगैरह पढ़ने नहीं पड़ता था। पहली बार वेबसाइट लॉन्च किया था, याद होगा चर्चिल सर ऑनलाइन रिजल्ट के लिए, और ये कुछ टीम बनाते थे, उलुल्ली करके दिखा देते थे। मैं इसे पूछा था भैया ये उलुल्ली क्या है? बोले बाबा तो बैठा नहीं कराना है, बुझाई देते थे, खाली बोला की करेंगे जब मैं कह देते। हमको बहुत बुरा लगा, भाई ये क्या हुआ, आप बताओ ना कि क्या है। तुम बैठा दो, माथा बोल रहे हो। उस दिन तो मेरे अंदर वो जग गया कि नहीं मेरे को करना है। तो सही रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा था, सही
मतलब समय नहीं आया था शायद। लोग कहते हैं वक्त के पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। हमारे सचिन सर इन्होंने हमेशा यही कहा कि विनय, इन्होंने हमेशा यही कहा कि विनय यू हैव पोटेंशियल, यू आर नॉट यूजिंग दैट मच, यू यूज योर पोटेंशियल। तुम्हारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, तुम उसको यूज करो। पता नहीं ऊर्जा कितनी है, सुबह से खाया नहीं हूँ फिर भी 2-3 घंटे से बोल रहा हूँ। मतलब खाया वैसा वाला नहीं खाया, बट 2-3 घंटे से बोल रहा हूँ। तो हाँ, उनकी बात सही नजर आ रही है कि ये 32 के एज में भी स्टार्ट करने के बाद फिर यहाँ पहुँच गया है। सो मेरा सारा थैंक्स फिर इनको जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे आदरणीय हरेश सर, he is not only the principal of this school, he is everything for me. He has given me everything whatever I have wished. मैंने जो चाहा, मुझे चाहिए सर मुझे क्लास में ना हल्ला करके पढ़ाना है, जाओ पढ़ाओ। मुझे सर ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाओ। सर मुझे ये करना है, जाओ करो। पूछता क्यों है, जाके करो ना यार। हम ही से पूछेगा, जीवन भर हम ही से पूछेगा। एंड ये वाला जो था ना फ्रीडम, उसने मुझे ना बहुत सोचने की आज़ादी दी, और उस आज़ादी ने मुझे लिखने की आज़ादी दी, उस लिखने की आज़ादी ने मुझे बोलने की आज़ादी दी। तो आपके लाइफ में हमेशा ना एक गाइड की ज़रूरत होती है। एंड these three are the life guides for you. They are guided in everything. And very huge respect to Mr. Secretary, हमारे प्रणव सर। एक यदि रियल बात बताऊं कि ये यदि ना हो तो शायद मेरा कुछ सोचा हो ही नहीं। यदि सारे लोग का एग्रीमेंट हाँ हो और वो कहते ना, अब तो खत्म। अब यही समझ जाओ कि इनका आशीर्वाद कहो, ब्लेसिंग्स कहो, जो कहो, सारा चीज मेरे ऊपर हमेशा से होता है। एंड दैट इज वाई टुडे आई एम हियर। मैंने कल फोन करा, उन्होंने कहा कि सारी चीजें अरेंज है। अब मैं आया, सारी चीजें अरेंज थी। सो बिग क्लैप फॉर दिस, फॉर आवर प्रणव सर, फॉर आवर रिस्पेक्टेड प्रणव सर।